Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is the workbook of science for class 8. And in last lecture we have been started chapter number 14, that is a chemical effect of electric current. Okay, and we also completed question 1 to 6 in workbook. Okay, so let's start with this question number 13, that is a mercury is a liquid and conduct electricity. Do you think it is an electrolyte? Do you think it is an electrolyte? No, मर्क्यूरी एक लिक्विड है बट वो एक मेटल है, इसलिए उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं होंगे और उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जो है ओके उसके टर्म में वो नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजंस. सो फर्स्ट है सॉलिड कॉमन सॉल्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो सॉलिड सॉल्ट कंसिस्ट of positive and negative ions that cannot move. However, when solid salt is dissolved in water, positive sodium ions and negative chlorine ions separate out. ओके, सॉलिड होगा सॉल्ट तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हो गए ओके जो मूव नहीं करेंगे, बट जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सेपरेट हो जाएंगे और वो इजीली मूव करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है सॉल्यूशन में वो फ्लो होगा ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. सो दिस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड है एन इलेक्ट्रिशियन यूजेस द रबर सोल्ट स्लीपर्स while working with electric appliances. So rubber is an insulator of electricity. रबर जो है इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है. In case of loose connection of wire, leakage of current, fault electrical appliances, तो करंट लीकेज होगा जिसकी वजह से हमको शॉक लग सकता है. But electrician will not get the electric shock during the repairing while they wear rubber sole slippers या rubber gloves. Okay, so therefore electrician uses the rubber sole slipper while working with electric appliances. Now third है tin cans used for storing food are made by electroplating tin onto iron. So tin is less reactive than iron food. tin जो है वो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है ओके जिसके लिए जिसे जो टीन में फूड स्टोर करेंगे तो वो स्पॉइल नहीं होगा. अगर आयरन का होगा कोई भी वेसल वगैरह तो उसमें स्टोर करोगे तो वो बिगड़ जाएगा. ओके, सो देयरफॉर टीन कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड. टीन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड इज कोटेड विथ टिन. ओके, सो यहाँ पे आएगा टीन कैन्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 मैच द फॉलोइंग. जस्ट अ सेकंड. ओके, फर्स्ट है कॉपर एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कार्बन रोड इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस है. फर्स्ट यूजेस है उसमें इंडस्ट्री में यूज़ होता है. सेकंड ज्वेलर्स यूज़ करता है. टीन कैन में यूज़ होता है. फोर्थ जो है वो फ्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है. ओके, सो आई रीड दिस. The uses of electroplating process are given below. First, it is widely used in the industry for coating metal object with a thin layer of a different metal. The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lacks. Second, jewelers electroplate silver and gold on less expensive metal. These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive. Third, tin cans used for storing food are made by electroplating tin on the iron. Tin is less reactive than iron, so thus food does not come into contact with iron and it is protected from getting spoiled. Fourth, iron is used in bridge and automobiles to provide strength. However, iron tends to corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. Now next here are given activity. Just a second student.
सो हियर आर गिवन एक्टिविटी 1 टू प्रिपेयर अ टॉर्च बल्ब टेस्टर। आपको इजीली एक टेस्टर आपको प्रिपेयर करना है, इसलिए इसमें कंक्लूजन नहीं लिखेंगे। ओके उसके लिए आपको सेल होल्डर चाहिए, ऐसे कॉपर वायर चाहिए, ऐसी क्रोकोडाइल पिन चाहिए और ये टॉर्च बल्ब चाहिए। ओके इस तरीके से आपको सर्किट ज्वाइंट करनी है। और ये जो क्रोकोडाइल यहाँ पे रखा है ना, वहाँ पे आपको कोई भी मेटल को पुट करके टेस्टर चेक करना है। यहाँ पर सेफ्टी पिन रखोगे तो बल्ब ग्लो होगा, प्लास्टिक का ब्लॉक रखोगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से टेस्टर रेडी होता है। सो कनेक्ट द गिवन मटीरियल एज शोन इन फिगर। सर्किट इज कॉल्ड द ओपन सर्किट। इट क्रोकोडाइल क्लिप्स A and B are not connected, so the current does not flow in the circuit and torch bulb does not glow. So the above arrangement is called electric tester. Now next है यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में कर दी है, जिसमें क्या है कि टू टेस्ट वेदर द लेमन जूस और विनेगर इज अ गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। बैटरी कनेक्ट करनी है, बैटरी का नेगेटिव टॉर्च के साथ, टॉर्च का सेकंड टर्मिनल उसको एक वो जो वायर है वो आपको ऐसे ही रहने देना है, जिसको कैथोड बोलेंगे। कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज वी से दैट एनोड। सो दोनों वायर के एंड को एक बीकर में जो हमने लेमन जूस का सॉल्यूशन ऐड किया है उसमें डिप करेंगे। जब इसमें डिप करेंगे ना तो क्या होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इस तरीके से, पॉजिटिव, इस तरीके से पॉजिटिव में से यहाँ से फिर नेगेटिव। सो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। सो टॉर्च बल्ब जो होगा वो ग्लो होगा। अगर हमने लेमन जूस की जगह पे विनेगर का सॉल्यूशन ऐड किया तो भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जिससे पता चलता है कि विनेगर एंड लेमन जूस दोनों जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। ओके चलो नेक्स्ट है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर। सिंपल है, सेम डायग्राम जो ऊपर एक्टिविटी है उसमें ही, सिर्फ आपको जो टॉर्च बल्ब था उसकी जगह पे कंपास नीडल आपको ऐड करना है इस तरीके से। ओके सो ड्रॉ इट योरसेल्फ इन योर वर्कबुक। फोर्थ है, आपको इसमें क्या बताया है कि कॉमन सोल्ट जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें केमिकल चेंजेस होता है जब करंट पास करते हैं, तो आपको वो एक्टिविटी बतानी है। तो यस, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, एक बीकर लेना है, उसमें आपको कॉपर सल्फेट का उसमें आपको कॉमन सोल्ट को डिज़ोल्व करना है। ओके एक ग्लास बीकर लेना है, उसमें वाटर पोर करना है, उसमें सॉल्ट डाल के उसको डिज़ोल्व करना है। फिर एक टेस्टर लेना है इस तरीके से, एक बैटरी लेनी है और उसके दोनों एंड कार्बन रोड को डिप करना है सॉल्यूशन पे। और ध्यान रखना है कि ये जो मेटल कैप है ना वो ये लिक्विड को टच ना हो। ओके दिस इज अ मेटल कैप, दिस बोथ आर कार्बन रोड, दिस इज अ एनोड कार्बन रोड, दिस इज अ कैथोड कार्बन रोड। और जब बैटरी ऑन होगी तो उसमें 3 to 4 मिनट तक करंट पास होगा। और इसमें यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, बबल्स दिखाई देंगे इस तरीके से। क्या फॉर्मेड होगा, बबल्स फॉर्मेड होगा। ओके सो बबल्स ऑफ गैस आर फॉर्मेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। सो ये जो दोनों रोड है जिसको इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। सो इससे क्या पता चलता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट चेंज इन केमिकल चेंज। ओके वाइल करंट इज पास्ड थ्रू इन इट, जब उसमें करंट पास होगा तो उसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी है, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक्टिविटी है, बहुत इजी है, सेम है। वो जो इलेक्ट्रोड्स थे उसकी जगह पे आपको कॉपर प्लेट ऐड कर देनी है। और ये सॉल्यूशन है उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और उसको ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए उसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। फिर बैटरी ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो एनोड का जो कॉपर है ना, ओके वो क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें डिज़ोल्व होगा कॉपर। और कॉपर ये सॉल्यूशन में से कॉपर कहाँ पे इकट्ठा होगा, ये कैथोड वाली कॉपर प्लेट पे। तो आपको उस पर जो लेयर जो होगा वो कोटेड, कॉपर का जोड़ा लेयर ठीक कोटेड लगेगा जब उसको इसमें से हम क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे। आए समझ में? ओके सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Okay so here you not write conclusion, okay, because we only explain this process here. Okay so
In next lecture, students, we will continue with new chapter, and I will checking on chapter number 14 workbook, journal and notebook. आपकी checking करूँगी next lecture में, then after मैं next chapter start करूँगी. So you all finish your all workbook, journal and notebook. Okay, so this is your homework. Okay, so we will meet again in next lecture. Till then, goodbye.